afternoon to all students. Let me start today's session. That is the advanced shell script. So in last lab session, we learned about shell script, how to code that shell script, and some basics of the various editors we learned at that session. So today we are going to learn this advanced shell script. So this is our ninth experiment. Is it visible to all? Akhilesh, is it visible? Okay. Yes, sir. Okay. So this is our experiment 9. So the aim is the right shell script. First experiment is to check whether given file is a directory or not. Second is to count number of files in a directory. Third, to copy the contents of the one file to another. Fourth, create a directory by contents on that one copy to suitable location in our home directory. Then fifth, to use a pipeline and command substitution to set the length of line in a file to a variable. And sixth, to use SCD command to print the duplicated files lines in input. Okay. So one by one we are going to see this. So here we use some SCD commands. Okay, so SCD means what? That is stand for string editor. So this string oriented editor was created exclusively for executing the script. All the inputs you feed into it passes through and goes to standard output. So that does not change your input file. So SCD can be evoked by sending the data through a pipe. We use the pipe operator. Normally that is called as a pipe and command substitution. Okay. So the part before the pipe, okay, so that is your command, and the pipe after the part after the pipe, that is your output. Okay, means that is input to the output. इस तरीके से हम वो यूज करते हैं. So following is the general syntax for SCD. Okay, so that is the range and description. So T stands for T prints the line and D deletes the line. Okay, so S/pattern1/pattern2 substitute the first occurrence of the pattern1 with the pattern2 and the deleting all the line with the same. So वहाँ पे वो ये जो भी लॉजिक है हमारा वो करने के लिए हमने क्या किया है? We use the cat command. कैट कमांड के बाद हमने क्या किया है? पा दिया है एडिशन पासवर्ड फोल्डर है जहाँ पे आपका वो फाइल है पासवर्ड नाम का. ओके, एंड पाइप ऑपरेटर यूज करके बाद में एससीडी कमांड यूज किया है जहाँ पे हमने डी सो दैट डी डिलीट्स और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन कमांड सब्स्टिट्यूशन यूज किया है $SCD -E. ओके, एंड फिर डी इन सिंगल कोटेशन जो भी आपका फाइल है उसको वो ये करेगा. सो दिस इज द नॉर्मल रेंज एंड द डिस्क्रिप्शन हाउ दैट created by using SCD command. So this is the theory about the SCD addresses. Okay, then range and description. Then we use some substitution command and flags and description. Okay, so one by one we are going to see. First we are go through the some programs. Okay, so here for your document creation, first you have to use the how replace or substitute string using SCD. Okay, so जो भी SCD string है, okay, वो कैसे substitute किया जाता है, replace कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है. Then how replace the nth occurrence of the pattern in the line using SCD, and then how replace all the occurrence of the pattern in the using SCD. Okay, वो भी हम देखेंगे. So now our first program is that check whether given file is directory or not. Okay, आपका फाइल जो है वो डायरेक्टरी है
कि नहीं है, ये हमें चेक करना है. सो वी टेकन हियर द वन एग्जांपल, फंक्शन दैट इज अ चेक फाइल. ओके, चेक फाइल नाम का एक फंक्शन लिया है आपने. ओके, उसके बाद यहाँ पे if कमांड यूज किया है, वहां पे आपने -z इज द रेंज, 0 रेंज है उसका. ओके, देन आपने क्या कर दिया है, एक डॉलर एरे लिया है, उसमें आपने आइटम 1 यानी कि आपका जो लोकेशन है 1 वो सेट किया है. देन echo प्लीज इनपुट समथिंग, आप यहाँ पे कुछ तो इनपुट कर रहे हैं. ओके, मींस यू प्रॉम्प्ट टू द यूजर टू इनपुट समथिंग. देन here your what is that, your if statement is ended here. Then we created the new variable or new array, that is a f is equal to $1. okay, so वहां पे हमने वो array create किया है जिसमें उसका size है 1. okay, then we also created one variable result, okay, which store the file. okay, file और $f, जो कि वहां पे हमने कमांड सब्स्टिट्यूशन यूज किया है. फिर हमने if का यूज करके फिर से यहाँ पे क्या कर दिया है, रिजल्ट को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अगर वो ओपन है. ओके, सो सॉरी दैट वो रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, फाइल को चेक करें. यहाँ पे जो ये जो है पार्ट, ओके, यहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू क्या है, फाइल है. तो वो फाइल अगर क्या अगर ओपन नहीं होता है, कैन नॉट ओपन, सो देन echo no file found. ओके, और वो रिजल्ट यहाँ पे आएगा. अगर वो डायरेक्टरी होगा, ओके, whether that check the directory, then you have to prompt the directory found. और अगर फाइल होगा, so then you are going to prompt the file. ओके, एंड लास्टली जो वैल्यू रिटर्न करेंगे चेक फाइल, ओके, उधर वैल्यू रिटर्न होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. सो ls experiment 9, sorry, cd experiment 9. okay, so already I have prepared that program. So the name of that program is directory not. So nano space dir not, directory not or file .sh. okay, so this is a one program. Other than we create another, okay, a file not program, control O nano. Otherwise we create here one text editor file. Oh, file not already is available there. Okay, file not .sh. okay, यहाँ पे भी वही सेम प्रोग्राम है. ठीक है, so this is a sample text editor. So by using this text editor also you can create the file. okay, file not. So you can see here our program is ready. So one बार means हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने अभी डायरेक्टली प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करके रखा है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपको कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या है ये जानना है. सो जब हम स्ट्रिंग के साथ जब हम कमांड यूज करते हैं, ओके, यहाँ पे क्या है, फाइल एक आपका कमांड है, और वहां पे हमने क्या कर दिया है, डॉलर साइन लगा के यहाँ पे हमने फाइल कमांड यहाँ पे यूज किया है. या तो नॉर्मली यहाँ पे रिजल्ट है, आप ये देख रहे हैं वेरिएबल रिजल्ट. सो हमने क्या कर दिया है, दिस इज योर रिटर्न वैल्यू. ओके, और यहाँ पे इको से हम क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न वैल्यू को कमांड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन. नाउ लेट वी रन दिस प्रोग्राम. सेव करते हैं प्रोग्राम को और
एंटर करते हैं, डॉट डैश फाइल नॉट डॉट sh, एंटर. सो प्लीज इनपुट समथिंग. अभी इसको इनपुट करना है समथिंग. अभी यहाँ पे कैसे, दिस इज द कमांड लाइन आर्गुमेंट. यहाँ पे स्पेस देके अभी ऊपर कोई भी एक जो है फाइल 1.txt, ओके, एंटर कर देते हैं. सो नो फाइल फाउंड, file1.txt. अब अगर एलएस करेंगे तो इस फोल्डर में है क्या कोई ऐसी file1 नाम का नहीं है. सो दैट इज द वी यूज हियर file.txt. ओके, सो नाउ फाइल फाउंड एंड फाइल का एट्रिब्यूट कौन सा फाइल है, वो ASCII टेक्स्ट है. ओके, फाइल फाउंड. नाउ ls, अभी इसमें फोल्डर है क्या कोई? ओके, देयर इज नो फोल्डर. सो वी क्रिएट द फोल्डर mkdir, सॉरी mkdir SEIT नाम का एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, ls. ओके, सो देयर इज अ वन फोल्डर SEIT, ब्लू कलर में लास्ट में है SEIT. नाउ चेक, can we check the is that folder or this? So here we put the SEIT, enter. So that shows directory form SEIT is the directory. So this is the our first experiment. Okay, so इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? Is anybody have a problem? किसी को प्रॉब्लम है क्या? एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम को रन करना है. ओके, मैं आपको एक कोड शेयर करूंगा आपको, इसको आपको रन करके सिर्फ क्या करना है. अब इसके जैसे और कोड भी होंगे तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ओके, थोड़ा रुकिए, मैं लोगों को ऐड करता हूँ. बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं. अचानक लेफ्ट होता डायरेक्ट. अच्छा, तुमका हाँ सर, ते टाइम फॉलो नाही. असं जे ठीक आहे, आजचा आणि उद्याचं प्रेझेंट लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला लेक्चर नाही घ्यायचं. ओके, त्यामुळे ऍडजस्ट करा आता 1-2 दिवस, आजच्या दिवस आणि उद्याच्या दिवस. ओके, चलो. सो लेट वी स्टार्ट. नेक्स्ट नहीं, एससीडी कमांड. एससीडी कमांड जो है उसके बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे सीखेंगे. सो ठीक है, लास्ट में सीखेंगे हम वो. पहले हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट ही लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज द टू काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी. एक पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी में फाइल कितने हैं ये जानने के लिए we use the command that is a wc. okay, ये wc यूज करते हैं हम नॉर्मली. ओके, सो ये wc क्या करता है कि आपका जो फाइल है उसको काउंट करता है. बट ये वर्क कैसे करता है कि पहले आपको क्या करना पड़ता है, वो जो पर्टिकुलर फाइल लिस्ट है उसको कॉल करना पड़ता है, और पाइप ऑपरेटर के बाद वो क्या करता है, वर्ड काउंट आप यूज करते हैं नॉर्मली. जैसे कि ls है. ओके, ls से क्या होगा, हमारा लिस्ट आ गया हमारा. अब हम ls -1 कर देते हैं. -1 क्या मतलब क्या है कि वो एक ही कॉलम में सभी फाइल्स दिखाएगा. जैसे कि फॉर लाइक दिस दिख रहा है आपको, कॉपी sh, कॉपी ssh, इस तरीके से दिख रहा है ना. हम क्या करेंगे, अभी ये ls -1 और यहाँ पे पाइप ऑपरेटर डाल रहे हैं, यानी कि अभी आगे का पार्ट क्या है, जो अभी यहाँ पे जो फाइल है वो क्या करेगा, ये काउंट करेगा. अभी ls -1 wc. ओके, wc -l. ओके, -l करेंगे तो क्या करेगा, ये बताएगा यहाँ पे 10 फाइल है. कितने फाइल है? सो हियर l का मतलब है प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल. ओके, सॉरी, फाइल नेम देना जरूरी है. ओके, सॉरी, उन्होंने एक पर्टिकुलर फाइल दे दिया. सो पहले हम वो wc / अभी कहाँ पे है हम, श्याम होम में है, होम/श्याम/ experiment 9. ओके, स्लैश. अभी एक फाइल देते हैं, इसमें कौन सी है, file.txt.
ओके, एंटर करते हैं। ओके, सो इसने क्या कर दिया यहाँ पे आपको 1 2 3 यानी कि 4 34 और 189 दिया है। तो उसमें से क्या आता है, 4 का नंबर ऑफ 4 जो है नंबर ऑफ लाइंस 4, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ बिट्स, इस तरीके से। सो 4 आपके नंबर ऑफ क्या है, लाइंस है, 34 वर्ड्स है और 189 बाइट्स है। ओके, ये सिंपल वर्ड काउंट कमांड अगर हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ls -1 और wc -1 किया तो वो जो वही पहले कॉपी डॉट sh उसमें से हम हमें भी आप wc करते हैं, wc और कॉपी डॉट टेक्स्ट, कॉपी डॉट txt एंटर करते हैं। सॉरी, इसमें कॉपी डॉट sh है। ओके, कॉपी डॉट sh एंटर। ओके, सो इस तरीके से जो कॉपी फाइल है उसके क्या आ गए, आपको डिटेल्स मिलेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी जो फाइल होती है, सो गेट द काउंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ फाइल, यूज द wc कमांड विद द नंबर ऑफ ऑप्शंस। लाइक यहाँ पे हमने फाइल नेम दिया तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे एंड नंबर ऑफ बिट्स विद फाइल नेम मिलेंगे। ओके, सो द आउटपुट ऑफ द फाइल लाइंस इज द फाइल नेम। ओके, अगर आपको ये चाहिए ls -1 wc -l करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल मिलेंगे। -m करेंगे तो प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे। -c करेंगे तो प्रिंट नंबर ऑफ बाइट्स मिलेंगे और -w करेंगे तो प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फाइल मिलेंगे। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ओके, सो मैं अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1 बाय 1 हम ये चेक करेंगे। ls, ओके, ls -1, ओके, पाइप, सॉरी पाइप नहीं आया है, पाइप wc -l। ओके, सो जो 10 आंसर आ गया है उसका आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम अभी -l की जगह m करेंगे। ओके, तो 87 आंसर आया आपका। ओके, मींस दैट कैरेक्टर्स आर द 87। देन m की जगह c करेंगे। ओके, तो सेम बाइट्स आए, प्रिंट नंबर ऑफ बाइट्स 87 ही आ गए और लास्ट में w करेंगे। ओके, सो दैट शोज द 10 वर्ड्स इन दैट फाइल। ओके, सो इस तरीके से आप ये कमांड सब्स्टिट्यूशन एंड पाइप ऑपरेटर ये दोनों यूज करके आप क्या कर सकते हो, और wc यानी कि वर्ड काउंट कमांड यूज करके आप पर्टिकुलर फाइल में या पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कितने फाइल्स है और कितने उसमें कैरेक्टर्स है, कितने वर्ड्स है, ये आप चेक कर सकते हो। ओके, और एक है माइनस कैपिटल L। ओके, सो आल्सो इट डिस्प्ले द 10 सेम। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज, तो यहाँ पे इस WC पे ऊपर बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट है। ओके, जहाँ के नॉर्मली समझो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको मैं, WC कमांड, सॉरी, वर्ड काउंट। आप अगर ये WC कमांड इन लिनक्स प्रिंट करोगे तो इसके और बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स के लिए है और एक और एक साइट है, उसका नाम लिनक्स वाइज नहीं, लिनक्स स्पीड। ओके, यहाँ पे सो तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ओके, जैसे कि एक फाइल है cat state.txt, उसमें ये 5 शहरों के स्टेट के नाम है और कैपिटल में उन कैपिटल्स के नाम है। अब क्या कर रहे हैं, वर्ड काउंट से आप state.txt का वर्ड काउंट कर रहे हैं उसमें, तो उस फाइल के पर्टिकुलर आपको
क्या करेंगे, पहले लाइन्स मिलेंगी, कैरेक्टर्स मिलेंगे और बाइट्स। ओके, इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल ये कर सकते हो। फिर आप दो फाइल का भी वर्ड काउंट कर सकते हो और उसका टोटल ले सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे -l यूज करके, ओके, -l -w, ओके, -c -m पूरे एग्जाम्पल किया, -l का भी एग्जाम्पल किया है, और लास्ट में वर्जन जो होता है उससे वर्जन आता है। फिर g ओके यूज करके आप उसको एक पर्टिकुलर एक सेल देंगे तो आपको वो पूरा उसका काउंट भी देगा। तो इस तरीके से ये साइड पे जाके आप गिग्स फॉर गिग्स पे आपको वर्ड काउंट के कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स है। ओके, सेम ही है तकरीबन, वो मैंने कवर कर ली है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ड काउंट कमांड क्या है। सो नाउ नेक्स्ट इज द count the number of files outside the directory. ये हो गया, काउंटिंग हो गया। थर्ड है to copy contents of one file to another. तो एक फाइल के कंटेंट दूसरे फाइल में हम कॉपी करना है। सो नॉर्मली हम सिंपली ये कॉपी कमांड से भी कर सकते हैं, हमने सीखा है, आपको दिखाया है मैंने। समझो यहाँ पे फाइल .txt दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये फाइल है, ओके, इसमें ये कंटेंट है, और आपको फाइल 1 दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फाइल 1, सो फाइल 1 में ये कंटेंट है। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग ओनली कॉपी कमांड वी कैन डू दिस। ओके, राइट, लाइक दिस। पहले हम क्या करेंगे, अगर एक फाइल के कंटेंट क्या है ये हमें कमांड से अगर सीखना है, ओके, तो हम क्या करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं? हेलो, अगर एक पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट रीड करने हैं तो which command be used? cat right, cat file dot txt. Okay, so I read the content of this file, okay, and then again I read the content of another file, cat file 1 dot txt. Okay, सॉरी क्या है उसका नाम, फाइल 1 डॉट txt, बराबर है, तो फिर क्यों नहीं रीड कर रहा है? ओके, वी आर इन एक्सपेरिमेंट 9 फोल्डर cd dot. ओके, सो नाउ हियर cat file 1 dot txt. ओके, सो ये कंटेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर, सो cp इज द कमांड, सो द फाइल .txt, okay, this is the source and destination file is file1.txt. okay, enter। तो अभी क्या होता है देखेंगे, cat file1.txt। ओके, देखिए, तो फाइल 1 में हमने वो कंटेंट क्या कर दिए, कॉपी कर दिए। ओके, तो ये हो गया सिंपल कॉपी कमांड से। फिर हमें क्या करना है कि नॉर्मली एक स्क्रिप्ट बनाना है जिसमें कि वो फाइल का पाथ पूछे या फाइल का नाम पूछे, नाम को एंटर करे, फिर दूसरे फाइल का नाम एंटर करे, और इस तरीके से वो हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करना है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर वापस जाएंगे उस फोल्डर में। ओके, सो every time prepare that there is a copy, open the my program and copy s.sh. So this is the program. So here we first prompt to the user, okay, enter the source file name. जो भी source file name है उसका नाम हम enter करने को बोलेंगे। Then वो read करेगा and that we store as a source file। src ये हमने क्या कर दिया है, फाइल क्रिएट किया है। फिर हम वो read करेंगे क्या src, वो src को हम डिस्प्ले करेंगे, यानी दूसरे कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। देन इको एंटर द टारगेट फाइल, फिर उसको रीड करके टारगेट में सेव करेंगे। देन इफ फाइल src, ओके, देन इको फाइल src, सॉरी, अगर वो फाइल नॉट अवेलेबल, ओके, सो दैट डिस्प्ले द मैसेज द फाइल src डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और अगर फाइल होगी, ओके, टारगेट, तो वो फाइल टारगेट एग्जिस्ट एंड कैन नॉट ओवरराइट।
ओके, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने लिखा है। नाउ अभी कॉपी कर रहे हैं, सो हियर cp कमांड भी यूजिंग सोर्स टू टारगेट, वो सिंपल कमांड है, हम कॉपी कर रहे हैं ये सोर्स से टारगेट में। देन यहाँ पे स्टेटस दिखाएंगे। अब स्टेटस क्या है, अब स्टेटस इज इक्वल टू 0 आ गया, ओके, देन फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे अगर परमिशन का कोई लफड़ा आता है तो स्टेटस वो 0 नहीं होगा और फाइल आपका सक्सेसफुली कॉपीड नहीं होगा। तो हम इसे सेव करते हैं, ओके, सेव कर दिया, शायद मैंने कर दिया। नाउ स्टार डॉट सॉरी डॉट स्लैश कॉपी एस डॉट एच, ओके, क्या हुआ, एस एच रह गया, ओके सॉरी, एस एच, ओके। एंटर सोर्स फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम क्या है, फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके। अभी डेस्टिनेशन क्या है, फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, ओके, एंटर। अभी क्या आया यहाँ पे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके, फाइल कॉपी, बट टारगेट फाइल जो है वो नहीं है। एलएस करेंगे क्योंकि यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी का फाइल 1 अभी क्रिएट हो गया उसमें, ओके, वो जो पहले नहीं था। सो एक बार क्या करेंगे, अगर सक्सेसफुली हुआ है तो फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, ओके, हो गया। एक बार और प्रोग्राम रन करेंगे, ओके, सो फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके, नो एक क्यों आ रहा है, फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहां पे, ठीक है, फाइल कोई तो वहां पे एट्रीब्यूट गलत हो गया शायद, डॉट टीएक्सटी, ओके, एग्जिस्ट, ओके, तो वहां पे फाइल 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सो कैन नॉट ओवरराइट, ओके। और एक बार फिर से हम कैट करेंगे, सो फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, ओके। सो इस तरीके से उसमें आपको क्या करेंगे, सब मिलेंगे। वो थोड़ा सा पहला जो एरर आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वो देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे फाइल है, वो कोड में देख शायद कोई तो, ठीक है, वो टास्क में आपके ऊपर छोड़ कि वो एरर आप निकाल, वो जो पर्टिकुलर एरर है, वो जो एरर आप रिकॉर्ड कर लो और वो आउटपुट में आप क्लियर कर लो। चलो, सो शायद यहाँ पे रीड, अच्छा राइट, हाँ सर खूप जणांना प्रॉब्लेम होतो, जॉइन प्रॉब्लेम होत आहे का, कोणाला कोणाला होत प्रॉब्लेम, सर ओके, मी त्याला टाइम आउट दाखवत आहे, ओके, ऍडमिट केलंय मी, ओके, आणखी कोणाला आहे प्रॉब्लेम, ज्याला जॉईन केले मी पाहिजे जणांना, हो सर, 25 जण आहेत आता सध्या, नेहा तर वाटतं अजून पण नाही प्रॉब्लेम, आणखी कोण आहे, कोण आहे, 25 जण तर आहेतच ना, कोणीच लेफ्ट होत नाहीये, जवळपास आहेत 25 जण आहेत। आता कोणाला रिक्वेस्ट सेंड करा ना, कारण तो कालचं प्रकरण झाल्यापासून मला हा निर्णय घ्यावा लागला आणि ऍक्च्युली बिना या ओपन वरती झूम चालत पण नाही, आणि त्या झूमचं मी झूम टाकलेलं आहे पण इथून झूम वर्क होत नाहीये, प्रॉब्लेम होतो याचा, त्याच्यामुळे मी कारण हे लिनक्स वरती शिकवणं गरजेचं होतं, त्याच्यामुळे मी हे ऑप्शन चूज केलाय, ठीक आहे, जाऊ दे, आपल्याकडे वेळ कमी आहे। सो दिस इज द थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो इसको जो भी एरर है वो छोटा सा एरर है, ओके, वो निकाल दीजिए आप। नेक्स्ट, जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके, यहाँ पे ये लाइन पे, यार ये लाइन पे वो एरर है, चेक कर लीजिए कि क्या स्टेटमेंट गलत है, ओके। देन ओके, कोई ने किसी ने तो प्रॉम्प्ट किया है,
नेहा। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्रिएट डायरेक्टरी while the contents on that and the copy to the suitable location in your home directory. Okay, एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है और उसमें कंटेंट कॉपी करके एक सुटेबल होम लोकेशन डायरेक्टरी में उसको आपको पेस्ट करना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक कोड कॉपी कर देता हूँ। कॉपी, शायद मैंने इसमें कौन सा है, फाइल नॉट तो नहीं है, काउंट डायरेक्टरी नॉट, ठीक है, डायरेक्टरी नॉट प्रोग्राम में डाल देता हूँ। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम वेयर बैश, यहाँ पे बिन बैश डालना है, बैश। ओके, सो मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी बनाएगा जिसमें कि होम शाम टेस्ट3 नाम का एक डायरेक्टरी बनाएगा। ओके, देन ls -f से क्या होता है चेक करेंगे हम, देखेंगे आप ls, ओके, -f करेंगे तो क्या होता है, तो ये दिखाता है आपका जो फाइल है, फाइल जितने भी, ओके, और डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी भी दिखाता है, वो इस तरीके से ls f करेगा। देन cp क्या कर रहे हैं हम, ड्राफ्ट 1 से, सॉरी ड्राफ्ट नाम का एक टेक्स्ट फाइल है, उससे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे ड्राफ्ट 3 में वो टेक्स्ट करेंगे और फिर सीडी में जाएंगे और चेक करेंगे कि वो फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं है। ओके, इस हमारा क्या है ये जो स्टेटमेंट, तो क्रिएट डायरेक्टरी, राइट कंटेंट्स ऑन दैट एंड द कॉपी टू द सुटेबल लोकेशन इन योर होम डायरेक्टरी। ओके, सो सेम हमने वो फ्लो क्या कर दिया यहाँ पे, और ई को हमने ये सेपरेट करने के लिए है। सो नाउ सेव इट, ओके, और हम इसे रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा इस तरीके से। सो पहले उसने चेक किया नो सच फाइल और डायरेक्टरी इज प्रेजेंट, देन मेक क्लियर कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, होम शो फाइल एग्जिस्ट, ऑलरेडी है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वो मैंने करके देखा था। ओके, कोड में तो हम अभी नया यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे हम। सो यहाँ पे टेस्ट3 की जगह हम टेस्ट5 डालेंगे। ओके, मेक डायरेक्टरी, फिर हम फाइल में जाएंगे। ओके, वहाँ पे टच यानी कि नया फाइल बनाना है, ड्राफ्ट फाइल। ओके, और ड्राफ्ट फाइल के कंटेंट कॉपी करके हम क्या कर रहे हैं, शाम नाम के फोल्डर में यहाँ पे ड्राफ्ट नंबर 6 डालेंगे फाइल का और ये सेव करेंगे इसे, ठीक है, और फिर से एक बार रन करेंगे इसे। ओके, सो यहाँ पे ओके ड्राफ्ट क्रिएट हो गया। सो अभी हम क्या करेंगे, कैट ड्राफ्ट.cx, अभी हम शाम फोल्डर नहीं है, सो कैट ड्राफ्ट, अभी ब्लैंक ही होगा शायद वो, ड्राफ्ट 6.txt। ओके, ls करके ड्राफ्ट 6 वहाँ पे हो गया है, कहाँ पे क्रिएट हो गया है, क्या कैरेक्टर वाढत जातात। ओके, एक्सपेरिमेंट 9 में है, हाँ हो, मग आणि तो सर्वात राईट साइडला नॉन आहे ना, म्हणून त्याचा हा नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे। यस 1 2 6 हो गया। सो यहाँ पे कैट एनी ऑप्शन मध्ये आहे का, ड्राफ्ट 6.txt। ओके, अभी वो एम्प्टी है, वो कॉपी करना है, तो वहाँ पे भी एक्चुअली जो ड्राफ्ट नाम का फाइल है उसमें हमें कंटेंट डाल देने चाहिए। ओके, टच करके। सो इस तरीके से हमने एक पहले फोल्डर बनाया। ओके, फिर हम उसमें उस फोल्डर में चले गए। ओके, टेस्ट5 नाम का एक फोल्डर है, अब हम देखेंगे cd टेस्ट5 नाम का फोल्डर है, यहाँ पे है। ओके, एंटर करते हैं उसमें और यहाँ पे ls करेंगे तो आपको ड्राफ्ट.txt मिलेगा, ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट
txt, सॉरी कैट करेंगे कैट, अभी एमडी होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सो ड्राफ्ट डॉट txt एंटर। ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी फाइल है। तो नॉर्मली जो हम इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी एक exe फाइल बनाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हर एक फाइल क्या होता है, उस हर एक लोकेशन पे जाता है। तो वहाँ पे इसी तरीके का एक स्क्रिप्ट बनाया होता है कि एक फोल्डर क्रिएट करे और वो फोल्डर में पर्टिकुलर फाइल वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए। ओके, या वो फाइल को मैं पुराना फाइल हो तो वहाँ पे रिप्लेस किया जाए। ओके, इस तरीके से इस तरीके का एक बेसिक शेल स्क्रिप्ट का फंडा वहाँ पे यूज किया होता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कमांड इज, सॉरी नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू यूज द pipeline and command substitution to set the length of line file to the variable। तो उसके पहले हम command substitution है क्या है वो देखेंगे। ओके, so the command substitutions, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं है, 1 मिनट, सृष्टि गंभीर, ओके, सो एक दो तीन एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या है वो जो हमने देखा था, यहाँ पे कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे एक इफ कमांड यूज किया दिख रहा है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे डॉलर फाइल यूज किया है, यानी कि जो वेरिएबल है ओके वो यहाँ पे यूज किया है, उसको वेरिएबल क्रिएट किया है। वो हम क्या करते हैं बाद में लास्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डन, यानी कि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है एक फंक्शन के साथ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। तो नॉर्मली एक एग्जांपल है और आपको दिखाना है यहाँ पे, तो 1 मिनट, ओके एक सिंपल एग्जाम, आपको डेट फंक्शन पता है डेट। ओके, तो ये डेट इस तरीके से मैंने यूज किया, तो डेट से क्या होगा, इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा, डेट डिस्प्ले होगा, राइट। मैं अभी इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक मैसेज के साथ डेट डिस्प्ले करना है। सो जैसे कि टुडे टुडेज डेट इज, और जो आपका डेट है अगर ये डालूंगा मैं तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिस कमांड इज नॉट फाउंड। तो ये पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे आप, कौन सा कमांड यूज करेंगे, इको। ओके, इको, ओके, टुडेज इसमें ये देना, टुडेज डेट इज डेट। ओके, ये अभी बताया क्या, देखेंगे हम हो रहा है, नहीं सिर्फ वो जो कोटेशन में वो जो है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो हमारा ये जो कमांड सब्स्टिट्यूशन है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करते हैं देखेंगे। सो यहाँ पे जो लास्ट वाला डेट है वहां पे हम डॉलर, ओके इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ओके डॉलर और ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, नाउ लेट अस सी, एंटर। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका टुडेज डेट इज वेडनेसडे। ओके, सो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पर्टिकुलर कमांड को आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पार्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे कि कैलेंडर है, जैसे कि दिस मंथ कैलेंडर। ओके, सो इको दिस मंथ कैलेंडर। ओके, यहाँ पे इसको डबल कोटेशन में डालना पड़ेगा,
डबल कोटेशन दिस मंथ कैलेंडर, ओके। और यहाँ पे अभी डॉलर ओके इन ब्रैकेट कैल, ओके, और डबल कोटेशन क्लोज, एंटर, ओके। सो दिस मंथ कैलेंडर आपका जो भी मैसेज होगा और उस मैसेज के बाद अप्रैल 2020 का कैलेंडर वहां पे प्रिंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन, ओके। या तो अभी सिंपल है, जैसे कि अभी एलएस एलएस कर रहा हूं यहाँ पे, तो ड्राफ्ट डॉट टेक्स्ट है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी cd डॉट cd एक्सपेरिमेंट 9, ओके। सो यहाँ पे एक जो है फाइल डॉट टीएक्सटी, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक मैसेज है, उसके साथ वो डिस्प्ले करेंगे, वो फाइल का डिस्प्ले करेंगे, ओके। सो हमारा मैसेज है इको, ओके। सो कंटेंट ऑफ माय फाइल आर एज, ओके। अभी कंटेंट ऑफ फाइल मुझे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या यूज करना पड़ेगा? कोई बता सकता है, हिंट दे सकता है? हेलो, क्या यूज करना पड़ेगा? सो यहाँ पे आपको डॉलर इन ब्रैकेट कैट, ओके, फाइल डॉट टीएक्सटी, ओके, और ब्रैकेट क्लोज करो और ये करो, एंटर, ओके। सो जो मेरा मैसेज है, उस मैसेज के साथ उस फाइल का कंटेंट वहां पे क्या हो गया, स्टोर हो गया, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन। अगर अवेलेबल है क्या? अच्छा, अवेलेबल है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कमांड सब्स्टिट्यूशन, ओके। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ओके। सो यहाँ पे डैश वेरिएबल्स एंड कमांड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको क्या करना है, वो वेरिएबल के साथ कमांड सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, ओके। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, ओके। आप सिंपल गूगल कर दीजिए ये कमांड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको वहां पे वो चीजें सब मिल जाएंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे कमांड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस प्रिंट करना है बाय यूजिंग कमांड सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो यू कैन प्रिंट सीक्वेंस SEQ, ओके, सीक्वेंस SEQ, और रेंज दीजिए 1 to 5, ओके। तो आपको वो सीक्वेंस वहां पे मिल जाएगा, यानी कि मेरे मैसेज के साथ सो द मींस द रेंज इको करेंगे, इको, ओके, द सीक्वेंस range is as follows, okay। और यहाँ पे डॉलर, ओके, और आपका जो भी प्रिंट करना है आपको सीक्वेंस 1 space to 15, एंटर। सॉरी कुछ तो रहेगा, ओके। One minute. ओके, क्या था मैसेज? इको इन डबल कोटेशन द सीक्वेंस, ओके, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, द सीक्वेंस डॉलर, ओके, एंड इन ब्रैकेट सीक्वेंस, ओके, 1 to 15, okay, bracket close, double quotation, enter. So the sequence is 1 to 15। इस तरीके से आपको वहाँ पे ये कमांड सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कमांड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आप उसका यूज करके वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, प्रैक्टिस करो इसका,
ओके, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हाउ इट विल बी, हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, जो काम हो गया है उसके. कमांड सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एससीडी कमांड, जो मेन हमारा जो कमांड है एससीडी. ओके, सो उसे हमें देखना है. पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, पहले हम उसे देखते हैं कि हमारे फाइल 1 में एक टेक्स्ट है. ओके, उसके ऊपर हम एससीडी कमांड का यूज करके कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं. सो दिस इज द वन टेक्स्ट. ओके, यूनिक्स इज अ ग्रेट ओएस, यूनिक्स इज ओपन सोर्स, यूनिक्स इज अ फ्री ओएस, learn operating system, Unix Linux which is a one choose, Unix is a learn to Unix, and ये इस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे डाल दिए. ये चेक कर लिया आपने. ओके, सो नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एससीडी कमांड यूज करके इसके ऊपर हम रिप्लेसिंग द सब्स्टिट्यूटिंग द स्ट्रिंग. ओके, मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ ऐसे इस तरीके से, सो वी कैन सी दिस. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं. मैंने आपको पूछा है जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन है उसमें ये पूछा है कि मैंने कि कैसे रिप्लेस करना है आपको. ओके, सो हियर दैट दे गिवन द कमांड दैट इज एसईडी. एसईडी आपको यूज करना है. देन जो सिंपल एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं हम ये, ओके, एस, ओके, स्लैश. अभी हमें क्या करना है, यूनिक्स की जगह लिनक्स को रिप्लेस करना है. ओके, पहले हम उस फोल्डर में जाएंगे, सॉरी हम फोल्डर के बाहर है, cd experiment 9. okay, now here we performing a cd, okay, s slash unix slash linux, okay, rows space, फाइल का नाम था फाइल डॉट txt. ओके, एंटर करेंगे. ओके, ओके, एक्सप्रेशन यहाँ पे ओके. फाइल डॉट txt. ओके, ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो जहां जहां पे भी यूनिक्स था, ओके, तो उसने क्या कर दिया है, हम देखेंगे कि हमारा रिप्लेस करना चाहिए बट इसने रिप्लेस नहीं किया है. यूनिक्स एक लिनक्स की जगह यूनिक्स है, पर एक लिनक्स बचा है उसमें. ओके, ठीक है, हम एक नेक्स्ट ऑपरेशन करके देखते हैं. सो एससीडी कमांड इज मोस्टली यूज्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट फाइल. बिलो सिंपल एससीडी कमांड रिप्लेस द वर्ड यूनिक्स विद द लिनक्स. अभी यहाँ पे कर लेना चाहिए बट ये कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. फाइल डॉट txt, एक्सप्रेशन तो बराबर है, एक बार फिर से परफॉर्म कर दे देते हैं. आ भी रहा है वो, बट यूनिक्स की जगह लिनक्स नहीं आ रहा है. ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं. आपके पीसी पे होता है क्या, देख लीजिए. ओके, ओके, लिनक्स इज अ ग्रेट ओएस. ओके, वही सेम आउटपुट आया. ओके, तो एक्चुअली हियर इज द एस, स्पेसिफाई द सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन. ओके, एक मिनट, नेक्स्ट करेंगे. ठहरो, एक ही सब्स्टिट्यूशन किया है उसने.
कोण बोलतो भीम ना? मग काय युद्ध करता बाबा पांडव लोक? ओके, सो कंपेयर अबोव स्ट्रिंग और बिलो स्ट्रिंग। ऊपर का और इसका यहाँ पे देखो, ये लिनक्स है, यहाँ पे यूनिक्स हो गया, और ये यूनिक्स है, यहाँ पे लिनक्स हो गया। तो इसने दो स्ट्रिंग क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। ये यूनिक्स यूनिक्स वैसे ही रहा, ठीक है। और यूनिक्स यहाँ पे लिनक्स है, तो यहाँ पे उसने यूनिक्स की जगह लिनक्स कर दिया। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे वो स्ट्रिंग चेंज करेगा। मींस यूज द 1 or 2 etc flag to replace the first or second occurrence। ओके, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ऑकरेंस वो जो हो रहा है, तो उसके लिए हम वो ऑफर करते हैं। और अगर -G लगाएंगे तो वो क्या करेगा, रिप्लेसिंग द ऑल ऑकरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे जो ऑकरेंस है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो इनपुट करेंगे, तो जहां पे भी अभी देखो, जहां पे भी ये लिनक्स आया है, वो ऑल लिनक्स क्या हो गया, रिप्लेस किया है। अब हम फिर से करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यूनिक्स की जगह लिनक्स डालेंगे और लिनक्स की जगह यूनिक्स करेंगे फिर से एक बार। ओके, सो यहाँ पे डालेंगे हम लिनक्स, ओके, और यहाँ पे डालेंगे यूनिक्स। ओके, यूनिक्स सिंपल। पहले हम क्या करते हैं, विदाउट इन्हें ऑप्शन यूज करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिनक्स था, ओके, वो क्या बन गया, सभी यूनिक्स बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप ये सब्स्टिट्यूशन और ऐसे से आप क्या कर सकते हो, जो टेक्स्ट को रिप्लेस करना है वो कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर nth ऑकरेंस जो है, पर्टिकुलर nth नंबर का जो भी ऑकरेंस है, आपको अगर वो सब्स्टिट्यूट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ के आगे के आगे फिर फोर्थ है, दैट इज अ रिप्लेसिंग nth ऑकरेंस, देन पैरेंथेसिस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड। ओके, जो हम नॉर्मली वर्ड में करते हैं ना कि वो, सो ये जो भी बाकी के एक्सपेरिमेंट है आप यहाँ पे करके देख लीजिए। सो दिस इज अवेलेबल ऑन Geeks for Geeks। ओके, तो ये नॉर्मली दो तीन मैंने आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पूछा है। ओके, सो आई आस्क यू हियर। सर येतोय ना आवाज? Okay, so the replace the substitute string using the SAD, replace nth occurrence of pattern in a line using SAD, and how replace all the occurrence in the pattern in the line using SAD। Okay, और इसका यूज करके अभी आपको क्या करना है, ये जो है the SAD command to print the duplicated lines of input। Okay, अभी ये आपके लिए टास्क है। Okay, ये डुप्लीकेटेड लाइन कैसे निकालता है, ये आपको सर्च करके मुझे आपको कल दिखाना है, या तो आप एक्सपेरिमेंट करके अपलोड किया तो भी चलेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट एडवांस शेल स्क्रिप्ट। ओके, उसमें हमने कुछ कमांड यूज किए। कल के सेशन में हम AWK, पर्ल और egrep कमांड, ये तीन कमांड, और तीन पर्ल इज द एक्चुअली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, फॉर द स्क्रिप्टिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और AWK और egrep जो कमांड है, सो हाउ दैट आर यूज्ड इन आवर शेल स्क्रिप्ट, वो हम कल के सेशन में रखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत है? सिंपल है, यहाँ पे अभी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो सिर्फ प्रोग्राम जो पहले ये तीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ रिप्लेस द सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, तो अभी जो Geeks for Geeks साइट है वहां से वहां पे कॉपी करना है। ओके, और ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, हर एक प्रोग्राम का ये कोड डालना है और उसका आउटपुट, कोड आउटपुट ऐसे जितने 5 एक्सपेरिमेंट है उसके कोड आउटपुट डालना है। और पोस्टलाट क्या है, एक्सप्लेन द SAD एड्रेस रेंजेस विद द टेबल, एक रेंज टेबल है जो दिखा है, एड्रेस रेंज टेबल है मैंने। ओके, वो ढूंढिए और उसका वो टेबल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। ओके, सो किसी को डिफिकल्टी है इसमें? अभी बताओ। और आई थिंक मैंने डेट जो लास्ट के 3 एक्सपेरिमेंट है उसका डेट रखा है
24 तक, और जो जिसके अपलोड करने रह गए एक्सपेरिमेंट, वो लोग आज रात को वो आज शायद मैंने लास्ट डेट दिया है 22, तो आज रात को आपको क्या करना है, वो अपलोड करना है। ओके चलो, तो मीटिंग को हम खत्म करते हैं यहाँ पे। ओके सो वी विल मीट टुमारो। ओके गुड डे, गुड बाय। पुलिस